पहले कल का जो हमारा डिस्कशन वगैरह हुआ था, तो वो कल से जो डिस्कशन हुआ उसको हम लोग पहले कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो सर मैंने जिस हिसाब से कहा था कि आपको अलग अलग सिचुएशन में कैमरा को यूज करके इमेजेस क्लिक करने हैं, तो वो आपने किया पहले कल? नहीं, सॉरी। yesterday तो I had a meeting after this commercial meeting. ओके Had to prepare for that. I was doing that ओके सर, because of this very cold. राइट राइट, द राइट आउट। So in the सर आपका आवाज कट हो रहा है। afternoon, okay, by the time I come, it is far off place. So ओके when I come, I don't know whether I'll have the mood, but I will do mostly. श्योर। Okay, tomorrow by tomorrow. But I didn't find the cable too to transfer the data. ओके ओके But today I will try to find that. Okay. श्योर सर, नो I प्रॉब्लम। asked my son also, he has not responded. ओके I have to see. no problem sir, so whenever you have a time, He just will be free now. yeah, I'll be free, so don't worry. Whenever you are capturing, just let me know so that Sure. images we can discuss on. Okay. So now, first of all, for today's lecture, we have two topics. One is our Yes. digital CSLR, that is how your camera works, that we will study. Okay. And the second one, that is the one pillar of photography, which is aperture. So Aperture. right, so what is exactly aperture, what is the use of that, then when we have to increase it or decrease it, so that things we Okay. have to study today's lecture. Okay. Okay. तो सबसे पहले हम एक आपका जो DSLR कैमरा है, so do you have that camera with you? On the table all the time. Okay, Yeah. sure sir. So now the image which you are able to see in the screen, okay, which is called as a DSLR, that is a digital single lens reflect. Okay. Okay. So this image will help us to understand how the image is getting recorded in our camera. So like Okay. you can see over here, the light is getting Okay. passed from your lens. So this part is for your lens, which is called as a eye of the camera. Like Okay. I told you, eye is the lens, then your sensor is the heart of DSLR camera, and the processor is the brain of the DSLR camera. Okay. So first of all, whenever you are capturing anything, so that light is there, so that light get passed through your lens. Okay. Then there is the one element which controls that how much light we have to increase, how much light we that can be enter in the lens, or how much light we have to decrease it, so that there is a one element in the lens which is called as a aperture level. So basically if you want to that is understand, so हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि ये जो अपर्चर है ना, ये हमारी आंखों की जो पलक है उसकी तरह है. Like say suppose if I'm now you are able to see me, okay, so like if I see like this, so what I did, मैंने मेरी आंखें बहुत कम छोटी सी ओपन कर ली, तो क्या हुआ, जो मैं देख पा रहा हूँ वो बहुत कम दिखाई देगा. सेम केस अगर मेरी आंखें में ऐसी बड़ी कर देता हूँ तो बॉटम में से बहुत ज्यादा लाइट मेरे अंदर आ जाएगा. तो ये सेम एक एलिमेंट होता है जो DSLR कैमरा में इंक्लूडेड है, लेंस के अंदर होता है ये एलिमेंट, जो कंट्रोल करता है कि कितना लाइट आपके लेंस के थ्रू आपको अंदर लेना है और कितना लाइट हमें अंदर नहीं लेना. सो दैट कंट्रोल इज ऑन योर अपर्चर रिंग. तो वो हम लोग एक वीडियो भी देखेंगे. फिलहाल से पहले समझ लेते हैं कि अपर्चर क्या काम करता है. तो अपर्चर इज द एलिमेंट which allows us to how much light we are supposed to get into your camera. जैसे अगर मान लीजिए कि मैं आउटडोर में शूट कर रहा हूँ, तो आउटडोर में बट ऑब्वियस लाइट बहुत ज्यादा होगा. सो इन दैट केस अगर मुझे बहुत ज्यादा लाइट सिचुएशन में है जो मुझे कैप्चर करना है, तो उस लाइट को मैं कम कर सकता हूँ यूजिंग दैट अपर्चर. तो अपर्चर अभी एक वीडियो देखेंगे तो वो एग्जैक्टली होता क्या है. तो ये एक ब्लेड टाइप होते हैं, रिंग होता है ब्लेड टाइप, जिसकी वजह से लाइट जो है कैप्चर किया जाता है. जैसे यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, अगर ये इमेज हम लोग ये वीडियो देखते हैं तो Need a professional website? I created one for our startup using Wix. Let me show you how I did. First,
describing how open or closed the perhaps the most What is aperture? Perhaps the most influential parameter of photography, aperture plays an important role in composition and setting up a shot. Let's take a closer look. Simply put, aperture is the hole in the lens through which light travels into the camera body and onto the camera sensor. To understand, let's look at the human eye. All cameras are designed like human eyes. The cornea of our eye is similar to the front element of the lens, gathering light and bending it inward toward the iris. The iris can expand or shrink, controlling the size of the pupil, which passes light into the inner eye. The pupil is what we refer to as the aperture in photography. The amount of light that falls onto the retina is determined by the size of the pupil. The larger the pupil, the more light falls onto the retina. The larger the aperture of the lens, the more light enters the camera. The iris of the lens controls the size of the aperture and is called the diaphragm. The diaphragm's function is to block all light, with the exception of the light that goes through the aperture. In photography, aperture is expressed in f-numbers, also known as f-stops. F-stops are a way of describing how open or closed the aperture is. The smaller the f-stop means a larger aperture, while a larger f-stop means a smaller aperture. This can be tricky to remember, since large f-stops mean small aperture sizes. So an f-stop of f1.4 is larger than f2.8 and much larger than f8 or f11. Aside from controlling the amount of light passing through the lens and into the camera, the aperture has a direct impact on the depth of field, the area of the image that appears sharp. A large f-number, such as f16, will bring all foreground and background objects into focus, while a small f-number, such as f1.4, will isolate either the foreground or background objects and make everything else blurry. Every lens has a limit on how large or small the aperture can get. If you take a look at the specifications of your lens, it should indicate the maximum apertures, lowest f-numbers, and minimum apertures, highest f-numbers. The maximum aperture of the lens is much more important than the minimum aperture, because it shows the speed of the lens. Lenses with apertures of f1.4 or f2.8 are considered fast lenses because they can pass more light into the camera than, for example, a lens with a maximum aperture of f4 or f5.6. That's the reason night photography usually requires fast lenses. The minimum aperture of a lens is usually not important and should rarely be used as it will cause the image to lose clarity. It is also worth noting the two types of lenses, primes and zooms. Prime lenses have a fixed focal length, meaning they cannot zoom without physically moving closer or further away from the subject. Zoom lenses give you the flexibility for you to zoom in or out of an object while remaining stationary. While prime lenses will have a fixed maximum aperture, the maximum aperture of a zoom lens will often get smaller as the focal length increases. These lenses are called variable aperture lenses. This is important because for a zoom lens with a focal length of 70 to 200 millimeters, the aperture may increase from f3.5 to f5.6, decreasing the amount of light entering the camera. Because aperture controls the amount of light entering the camera, it also affects other parameters such as ISO and shutter speed. A larger aperture or smaller f-number will let more light into the camera, allowing you to use a faster shutter speed or lower ISO value. This is beneficial to eliminate motion blur and reduce the amount of noise that your camera will produce if its ISO gets bumped up. Faster shutter speeds can be essential in scenes with lots of motion, like sports and wildlife photography. So a fast lens can help increase your shutter speed or decrease your ISO value if your shutter speed is set to a specific value. Fast lenses are also imperative for any kind of nighttime photography. Whether you're taking pictures of the Milky Way or doing a moonlit photo shoot, large apertures will let as much light in as possible. Small apertures can be useful as well. Shooting landscape scenes requires everything in crisp focus, so smaller apertures will sharpen any out-of-focus areas that may come about. To enable manual adjustment of aperture values, set your camera to either aperture priority or manual mode. Aperture priority will let you change aperture values manually, while leaving shutter speed and ISO up to the camera's internal metering system.
Manual mode lets you control every aspect of the camera, allowing you to change ISO, aperture, and shutter speed. I personally leave my camera in aperture priority mode 99% of the time for most types of photography. With all this information, you should be able to start using your lenses and cameras to the best of their ability. Aperture is तो ये जो वीडियो है, the most stylistic setting you can change on your camera, allowing ये जो वीडियो है ना सर, तो इसमें बहुत ज्यादा डीप में बताया गया है। सिर्फ हमें इतना ध्यान में रखना है कि अपर्चर मतलब क्या, कि लेंस के अंदर एक ब्लेड्स होते हैं जो हमें कंट्रोल करते हैं कि कितना लाइट मेरे लेंस के अंदर एंटर करेगा, कितना लाइट एंटर नहीं करेगा। जैसे मैं आपको एक इमेज बताता हूँ, कैमरा, ओके, सो इमेजेस, ओके, ओके। तो ये जो एलिमेंट है ना, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो ये क्या होता है, ये एक पर्टिकुलर एलिमेंट हमारे लेंस के अंदर अटैच होता है। तो अभी अगर आपका 55-250 जो लेंस है ना, उसको आप कैमरा से रिमूवल कीजिए। आपका जो लेंस है, मैंने आपको जो बोला था, देयर इज अ लेंस रिलीज बटन, जस्ट प्रेस दैट एंड आपकी जो लेंस है उसको आप इन्वर्टली, जैसे एंटी क्लॉकवाइज आप उसको घुमाइए, तो आपका लेंस डिटैच हो जाएगा। ओके, डिटैच हो गया। अभी आप उस लेंस को एक लाइट सोर्स जो है हमारा, जैसे आपके यहाँ पे विंडो है, राइट, तो आपका जो अपर्चर है ना, जैसे आप उसको जूम करोगे ना, तो आपको अंदर बहुत ज्यादा एरिया वाइड ओपन हुआ दिखाई देगा। जब आप लेंस के थ्रू देखोगे, बैक साइड जो लेंस है उसके थ्रू देखिए, तो जब आप जूम करोगे तो आपका ज्यादा एक एरिया जो आपको दिखाई देगा कांच के थ्रू। तो अगर आप जूम इन करोगे तो वो अलग हो जाएगा, जूम आउट करोगे वो अलग हो जाएगा। करेक्ट, राइट। तो वो क्यों होता है? तो उस लेंस के अंदर जैसे ये एक एलिमेंट है जिसमें आप देख सकते हो, ये जो एक एक पार्ट दिखाई दे रहा है ना, एक एक ये वाला एक पार्ट है, ये वाला एक पार्ट है, राइट, ब्लेड। तो ये जो है वो नंबर ऑफ ब्लेड्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं कि कितना लाइट एंटर करेगा, कितना लाइट एंटर नहीं करेगा। तो ये मैं कंट्रोल कर सकता हूँ मेरे कैमरा सेटिंग्स के थ्रू। तो जब मेरा एपर्चर नंबर ज्यादा होगा, तो एपर्चर को है उसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, उसका कुछ पैरामीटर होना चाहिए ना एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे कोई भी चीज अगर मैं एक्सप्रेस करता हूँ तो उसका एक यूनिट होता है। तो यूनिट क्या उसको बोला जाता है? तो अपर्चर हमेशा जिस यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं उसको कहते हैं एफ स्टॉप। ओके, राइट, एफ स्टॉप आपको अपर्चर के लिए यूज किया जाता है। तो वो हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि एफ स्टॉप क्या होता है। तो जैसे अभी मैं आपको एक नोट्स में बताता हूँ। ओके, शटर स्पीड एंड देन अपर्चर। सो द अपर्चर of a lens is a diameter of the lens opening, and it usually controlled by an iris. So aperture is always expressed as a f-stop. f-stop जो मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर क्या हमें ध्यान में रखना है? तो wide open aperture that is f1.8 is more light coming in. जैसे मेरा अपर्चर जितना कम है, जितना कम मतलब जो नंबर है मेरा वो जितना कम होगा, 1, 1.2, 1.4, A 1.8, उसके बाद में 2, 2.4, ये जितने अपर्चर होते हैं ना, ये हमेशा नंबर्स में आपको मेंशन करने होते हैं। तो जितना स्मॉलर आपका नंबर है उतना ज्यादा आपका जो लेंस है वो वाइड ओपन होगा। जैसे अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि f1.8 अगर मैं अपर्चर रखता हूँ, तो मेरा क्या होगा, ये जो ब्लेड है ना, ये जो आप देख पा रहे हो, ये वाइड ओपन होंगे। तो ब्लेड ऑटोमेटिकली जब ओपन होंगे, जैसे आप अभी जूम कर रहे थे आपका लेंस, तो आपको वो कई बार छोटा दिखाई दे रहा है कांच के थ्रू, कई बार ज्यादा दिखाई दे रहा है, बिकॉज वो जो ओपनिंग हो रहा है, उस जो ओपनिंग है अपर्चर का, वो वाइड अगर ओपन होगा तो बट से मेरे अंदर लाइट जो बहुत ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है कि अपर्चर का जो लोएस्ट नंबर होता है, इट मीन्स द मोर लाइट इज कमिंग इनटू योर लेंस। एंड अगर आपका अपर्चर जो है वो आपका हाईएस्ट नंबर है, जैसे f16 हो गया, f18, तो आपका लेस लाइट आएगा आपके लेंस के थ्रू। अब ये जो नंबर है इसको हम लोग ट्राई करते हैं समझने के लिए। तो अपर्चर का एक चार्ट है ये, यहाँ पर देखिए कैसे है कि आपका जो लेंस होता है ना, हर एक लेंस में अपर्चर के कुछ वैल्यूज होते हैं। जैसे अगर मैं हम लोग नॉर्मल एग्जांपल लूँ,
तो जो हम लोग नोट्स यूज करते हैं करेंसी हमारी इंडियन करेंसी, तो इंडियन करेंसी कैसी हो रही है, 10 रुपीज का एक नोट है, देन अगेन वी हैव 20 रुपीज, देन 50, देन 100, देन आपका 200, नाउ आई थिंक 200 का भी आई थिंक है क्या नहीं नोट, आई डोंट नो, बट देन 500 और 1000 रुपीज। तो अभी मेरे पास अलग अलग डिनोमिनेशन है। तो जैसे ही वो करेंसी में डिनोमिनेशन होते हैं, यहाँ पर आपका जो अपर्चर लेवल है उसके भी कुछ स्टॉप है। तो जैसे यहाँ पर होता है f1.4, मतलब क्या होगा कि आपका जो लेंस का अपर्चर है वो बहुत ज्यादा वाइड ओपन हो जाएगा। जैसे मैं नंबर इंक्रीज करते जाऊंगा f2, तो मेरा अपर्चर लेवल थोड़ा छोटा हो गया, मेरा जो अपर्चर है वो थोड़ा कम वाइड ओपन होगा। देन 2.8, तो आप इमेज में देख सकते हो कि आपका जो अपर्चर है, जैसे जैसे मेरा नंबर इंक्रीज होते जा रहा है, वैसे वैसे ये जो होल दिखाई दे रहा है ना आपको, ये जो होल जहाँ से लाइट पास होने वाला है, वो होल कम होते जाता है। तो उसका रिजल्ट क्या, तो जैसे अगर मान लीजिए मैं f4 है, तो मेरा जो लेंस का अपर्चर है वो वाइड ओपन है, तो बट ऑफ दिस मोर लाइट विल कम इनटू द माय कैमरा। तो मेरा जो ये फाइनल रिजल्ट होगा, जैसे यहाँ पर एक इमेज कैप्चर किया है उन्होंने, सेम सब्जेक्ट इमेज कैप्चर किया है, तो यहाँ पे आपको देख पा रहे हो कि बहुत ज्यादा इमेज में लाइट आ गया है, जितना रिक्वायर नहीं है। तो वो मुझे आप ये जब चार्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे जैसे मैं मेरा अपर्चर लेवल कम करते जा रहा हूँ, वैसे वैसे मेरी जो इमेज है वो डार्क होती जा रही है। बिकॉज बट ऑब्वियस जितना लाइट कम आएगा तो इमेज भी डार्क दिखाई देगी, जितना लाइट ज्यादा एंटर करेगा उतनी लाइट मेरे इमेज में आ जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ हमें इतना ध्यान में रखना है कि व्हाट इज अपर्चर, इट इज अ वन मैकेनिज्म which consists of different types of blade, okay, so that blade number can be 10, कि अगर आपका एक अपर्चर का रिंग है तो उसमें आपके 10 ब्लेड भी हो सकते हैं, 8 ब्लेड्स भी हो सकते हैं। अलग अलग लेंसेस में किसी में 10 ब्लेड होते हैं, किसी में 8 ब्लेड्स होते हैं। तो वो ब्लेड क्या करते हैं, जब हम लोग अपर्चर का नंबर इंक्रीज करेंगे तो आपका जो लेंस का अपर्चर है, जैसे ये जो होल है ये छोटा होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा। तो अभी मैं आपको बोलूंगा कि आप कैमरा का जो लेंस है उसको अटैच कीजिए कैमरा से, आपने जो भी लेंस निकाला ना उसको कैमरा से अटैच कीजिए। तो अभी कैमरा ऑन कीजिए, और जो मैंने आपको मोड डायल बताया था कि कैमरा का जो मोड डायल हम लोगों ने सीखा था, उसमें ए जो था ना अपर्चर वैल्यू, ए मोड था आपके मोड डायल पर। ओके, तो एम था ए, तो अभी वो मोड ना कैमरा का ए पर रखिए, कैमरा अपर्चर मोड पे रखिए अभी आपका राइट। सो नाउ यू आर एबल टू सी द सेटिंग्स ऑन योर स्क्रीन। तो आप ऊपर जो कमांड डायल है अगर उसको आप करोगे तो आपको कुछ नंबर्स दिखाई देंगे अपर्चर के। राइट, अपर्चर, हाँ, तो अपर्चर के जो नंबर्स आप देख पा रहे हो ना कि उसमें आपका अपर्चर होगा, अभी आपका जो लेंस है 55-250 है, तो उसमें आपका अपर्चर मैक्सिमम हो सकता है 4 या फिर 3.3 हो सकता है। तो वो 4, 4.2, उसके बाद में आपका 8 आ रहा है, अपर्चर 11, तो वो डिजिट्स जो है ना इंक्रीज होते जाते हैं। तो मिनिमम आपका अभी क्या नंबर शो कर रहा है आप जब स्क्रीन पे देख रहे हो तब? ये अच्छा नहीं दिख रहा है, बहुत लेट है इधर। ओके ओके ओके, नो वेट अ मिनट, नीचे आता है ना? हाँ, नीचे आपको ना अपर्चर एक शो करेगा। अपर्चर इट इज शोइंग बिलो दैट, राइट, नंबर। तो वो लोएस्ट नंबर क्या है वहां पर? मेरे को दिखा नहीं देता, बहुत छोटा है। ओके ओके, कोई बात नहीं, मैं आपको ना इमेज में बताता हूँ, मैं जो वीडियो प्ले करूंगा ना इसमें आपको दिखाता हूँ मैं कि 90। ओके, तो जैसे हाँ, तो ये हमारे जो कैमरा की जो सेटिंग्स है, तो उसमें आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर ना कुछ लिखा होता है 5.6 या फिर 2.8,
तो वो जो आपका वैल्यू है वो उसको कहते हैं नंबर ऑफ अपर्चर। तो जब हम लोग कैमरा, आप जब आपका कैमरा ऑटो अपर्चर मोड पे डालोगे ना, तो सेटिंग्स आपको शो करेंगे। अभी आपका जो 55-250 जो लेंस है उसका मैक्सिमम जो अपर्चर होगा वो f32 होगा और मिनिमम अपर्चर f4 के आसपास होना चाहिए। मैं आपको एक चेक करते हैं हम लोग लेंस। Cannot read that. श्योर सर, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अभी ये आपका निकॉन का 5200 राइट। तो ये आपका इमेज है, जो आपका लेंस है ना उसका इमेज है ये। तो इस इमेज में आपका जो मिनिमम अपर्चर है वो f4 है, नंबर ऑफ स्टॉप f4, और मैक्सिमम जो आपका f4 और 5.6 और मैक्सिमम आप 32 तक जा सकते हो। तो आपका जो मिनिमम अपर्चर लेवल है यहाँ पर वो होगा f4, जो F4 it is showing. राइट। सो f4 इज 4। तो ये आपका जो लेवल लेंस का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है, अगर मैं उसको कम करते चाहूंगा तो मैं f4 तक जाऊंगा, उसके बियॉन्ड में जा नहीं सकता। तो हर 1.4 to 5.6. हाँ, मतलब क्या कि अगर मैं मिनिमम करने जाता हूँ एपर्चर, तो मेरा एपर्चर मिनिमम हो सकता है 4 या 5.6 और मैक्सिमम जो होता है वो f22 तक होता है। तो एपर्चर का जो चार्ट है वो मिनिमम जो है हमें वो चेक करना पड़ता है कि जो मेरे पास लेंस है ना, तो उस लेंस में मेरा मिनिमम अपर्चर कितना है। तो उससे क्या फायदा होगा कि जितना कम आपका अपर्चर है उतना ज्यादा आपको ब्लर बैकग्राउंड मिलेगा। तो जो हम लोग देखते हैं ना कि मॉडल शूट कर रहा हूँ मैं, या फिर जहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि बैकग्राउंड बहुत ज्यादा ब्लर हो जाता है, तो उसकी वजह से बिकॉज उनका जो अपर्चर लेवल होता है वो f4 से भी नीचे चला जाता है, जो f2.8 होता है, 1.8 या फिर f1। तो ये जो नंबर्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये उसके स्टॉप होते हैं। मैं आपको एक और चार्ट बताता हूँ। But the lens said 5.6. हाँ, But you are saying the maximum it is showing 4 only. नो, कैसे है कि अगर मैं 55 mm पे शूट कर रहा हूँ ना, मेरा जो लेंस है, तो मेरा मिनिमम अपर्चर होगा वो 4 तक आएगा। ओके। मिनिमम अपर्चर जो है ना मैं 4 तक कर सकता हूँ सेटिंग कैमरा में, बिकॉज मेरा लेंस मुझे ओनली अलाउ करेगा कि f4 जो है वो उतना ही लेंस मेरा मैक्सिमम 5.6 नहीं कर सकता है। नहीं, 4 और 5.6 रहेगा मिनिमम जो है ना। मिनिमम में हमेशा 2 स्टॉप, आइदर मैं 4 कर सकता हूँ इसमें, अगर नहीं तो 5.6। हाँ, तो मैं 55 mm पे अगर शूट कर रहा हूँ तो मेरा मिनिमम अपर्चर कितना कर सकता हूँ मैं, f4। अगर मैं 200 mm पे शूट कर रहा हूँ, 200 mm पे अगर मैं शूट कर रहा हूँ तो मेरा मिनिमम अपर्चर कितना होगा, 5.6। ओके। तो ये कैसे उनके ना 2 लेवल दिए होते हैं कि एक कम से कम कितना और ज्यादा से ज्यादा कितना। तो अगर मैं कम से कम जो मेरा फोकल लेंथ है इसके लेंस का जो है 55 mm, राइट। तो मैं 55 mm पे अगर ट्राई कीजिए, मैं शूट करने की कोई कोशिश कर रहा हूँ, तो उस लेवल पे मैं अगर मुझे लोअर जाना है तो मैक्सिमम जो मैं लो जा सकता हूँ वो कितना है, f4 जो नंबर है अपर्चर। अगर सेम मैं लेंस को जूम करता हूँ और अभी जूम कर रहा हूँ तो मेरा जो जूम लेवल है वो मैंने एकदम फुल जूम कर दिया, लेंस को 200 mm पे कर दिया। तो अभी 200 mm में मैं अगर शूट कर रहा हूँ तो मुझे जो कैमरा है, वो जो लेंस है वो कितना अपर्चर अलाउ करेगा, 5.6। अभी उसमें 5.6 के नीचे नहीं आ सकता। तो एक वो तो चेंज नहीं हो रहा है ना जूम करने से। नहीं, जूम करने से चेंज होगा जब आप जूम कीजिए और आप जब कैमरा को प्रेस करोगे ना तो आपको एलसीडी पे ना अपर्चर आपको दिखाई देगा। ओके। मैं आपको वीडियो शो करता हूँ। Oh, here it is showing the minimum. When we shoot, it will show the actual value. राइट। सो यहाँ पर आपको जो मिनिमम शूट कर मिनिमम आपको दिखाई दे रहा है ना, वो मिनिमम कितना होगा, 55 mm पे 4 दिखाई दे रहा है। सेम आप लेंस को जूम कीजिए
और तब अभी हाँ। मिनिमम कितना है वो ट्राई कीजिए देखने के लिए, तो वो 5.6 दिखाएगा। अगर मैं लेंस जूम करता हूँ 200 mm तक, वही मैं बोल रहा हूँ, अभी 200 में डाला, हाँ तो once again it is remaining at 4. इस 4 पे है, राइट। तो वो आपका जो लेंस है वो कितना हो सकता है, 4 to 5.6 तक आपको वैल्यू प्रोवाइड करता है मिनिमम में, और मैक्सिमम आपको प्रोवाइड करेगा f22 तक। f8 होगा, f11 होगा, f16 होगा, उसके बाद में f22 तक आपको शो करेगा, राइट। जिससे अभी हम लोग एक वीडियो देखेंगे, आपका जो पर्टिकुलर लेंस है ना ये 55-200 में जो अपर्चर है वो ये वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, ठीक मैं है। एक वीडियो प्ले करता हूँ। अभी ये जब लेंस को ओपन करेगा ना, तो ये उसमें से अपर्चर का जो रिंग है वो शो करेगा हमें कि वो रिंग कैसे दिखाई देता है। अभी आप देख पा रहे हो जब वो यहाँ पर प्रेस कर रहा है ना एक बटन, तो ये जो बीच वाला पोर्शन है ना, ये जो ब्लेड्स है वो ब्लेड्स ओपन हो रहे हैं और क्लोज हो पा रहे हैं। जैसे अभी हम लोग फिर से देखेंगे। राइट, वो जो ब्लेड्स है ना वो ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं। करेक्ट। और एक आपको वीडियो में शो करता हूँ। दोस्तों, आपने मोबाइल या डीएसएलआर के स्पेसिफिकेशंस में ये जरूर देखा होगा कि कैमरा का अपर्चर f1.7, f1.8, f2.0 या डीएसएलआर सब में ऐसा देखा होगा जैसे f3.5 to 5.6। तो ये अपर्चर क्या है और इन नंबर्स का क्या मतलब है, तो यही आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में से एक, तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। अपर्चर किसी कैमरा के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में से एक है, जो है अपर्चर, आईएसओ और शटर स्पीड। इन तीनों को 3 पिलर्स ऑफ फोटोग्राफी कहा जाता है। दोस्तों, अपर्चर का मतलब होता है कि कैमरा की लेंस की ओपनिंग कितनी बड़ी है और उससे कितनी लाइट पास हो रही है। अगर लेंस की ओपनिंग बड़ी होगी तो ज़्यादा लाइट कैमरा लेंस में इंटर करेगी और सेंसर में पहुंचेगी, और अगर ओपनिंग छोटी होगी तो कम लाइट इंटर करेगी। इसे अपने खुद के आई से कंपेयर करके समझे तो जैसे हमारी आई है, उसमें कॉर्निया है, फिर ब्लैक कलर की आइरिस है और उसमें होती है प्यूपिल, जो खुद से छोटी या बड़ी होती रहती है लाइट के हिसाब से। अगर अंधेरा हो तो प्यूपिल बड़ी हो जाएगी ताकि हम अंधेरे में अच्छे से देख सकें, और दिन में छोटी हो जाएगी कि एक्सेस लाइट आंखों में इंटर ना करे, और फिर वो लाइट रेटिना पर जाती है और फिर हमारी ब्रेन उस इमेज को प्रोसेस करती है। उसी तरह कैमरा की भी स्ट्रक्चर होती है। प्यूपिल की तरह डायफ्राम होती है जो ऑटोमेटिक या मैनुअली ओपनिंग को बड़ा या छोटा करती है,
जिससे डिसाइड होता है कि कितनी लाइट कैमरा में इंटर करेगी। फिर इमेज प्रोसेस होता है, तो वही प्यूपिल ही कैमरा की अपर्चर है। फोटोग्राफी में अपर्चर के मेजरमेंट को एफ स्टॉप्स या एफ नंबर में काउंट किया जाता है। एफ नंबर जितना कम होगा उसका मतलब अपर्चर उतना ही ज़्यादा है, मतलब ओपनिंग बड़ा है। उसी तरह एफ नंबर अगर ज़्यादा हो तो इसका मतलब ये है कि अपर्चर कम है, मतलब कैमरा ओपनिंग छोटा है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग कंसेप्ट है पर टफ नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर एफ स्टॉप 1.8 है तो इसका मतलब ये है कि एफ स्टॉप 2.0 के कैमरा से ज़्यादा लार्ज अपर्चर है, मतलब लेंस ओपनिंग बड़ी है। उसी तरह एफ 2.0 की अपर्चर एफ 16 से कहीं ज़्यादा लार्ज होगी, मतलब लार्ज अपर्चर वाली कैमरा में ज़्यादा लाइट इंटर करेगी और स्मॉल अपर्चर वाले कैमरा में कम। पर इसका मतलब ये नहीं है कि स्मॉल अपर्चर वाले कैमरा की पिक्चर्स बिल्कुल डार्क होगी। अपर्चर शटर स्पीड को भी अफेक्ट करती है। जैसे अपर्चर लार्ज है तो ऑलरेडी इनफ लाइट इंटर कर रही है, तो कैमरा की शटर स्पीड फास्ट रहेगी। जैसे एफ 4.0 अपर्चर के कैमरा में एफ 2.8 अपर्चर के कैमरा की कंपैरिजन में सिर्फ आधी लाइट इंटर करती है, तो इसको शटर स्पीड से मैनेज किया जाता है। जैसे एफ 4.0 अपर्चर के कैमरा की शटर स्पीड अगर सेकेंड का 50वां हिस्सा होगा तो एफ 2.8 में सेकेंड का 100वां हिस्सा होगा। तो दोनों पिक्चर में एक्सपोजर सेम होगा। क्योंकि एफ 2.8 के लार्ज अपर्चर में ज़्यादा लाइट आ रही है तो शटर जल्दी से बंद हो गई, बट एफ 4.0 में शटर देर से बंद हुई और ज़्यादा देर तक खुली रही ताकि ज़्यादा लाइट इंटर कर सके। इसी तरह एफ 2.0 अभी ये जो वीडियो है ना सर, इसमें अभी तो जो बताया जा रहा है वो एक हाई लेवल बताया जा रहा है, जो शटर स्पीड वगैरह, बिकॉज अभी शटर स्पीड हम लोग पहुंचे नहीं अब तक शटर स्पीड के चार। तो अभी हमें सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि अपर्चर क्या होता है। अपर्चर एक रिंग होती है लेंस के अंदर, वो कंट्रोल करती है, जिसमें इट कंसिस्ट ऑफ ब्लेड्स, 4 से 5 अलग अलग ब्लेड से कंसिस्ट करके वो एक रिंग होता है। तो वो जो रिंग जैसे ओपन होगा, तो अगर मैं जैसे ज्यादा ओपन हो गया तो वट ऑब्वियसली उतना ज्यादा लाइट आपके एंटर करेगा लेंस के अंदर, और कम अगर ओपन होगा तो कम लाइट एंटर करेगा। ये हमें पहली ध्यान में बात रखनी है। सेकंड, अपर्चर जो है हमेशा एक पैरामीटर होता है, एक यूनिट में उसको मेजर किया जाता है, उस यूनिट का नाम है एफ स्टॉप। तो कोई भी एफ स्टॉप, तो कोई अगर आपको पूछता है कि अच्छा ये आपने इमेज लिया तो इसका एफ स्टॉप कितना था, मतलब वो ये पूछना चाहता है कि आप जो इमेज ले रहे हो इसको जब आपने शूट किया तो आपका अपर्चर लेवल क्या था, मतलब आपका अपर्चर ज्यादा ओपन था या कम ओपन था। तो अभी मैं ज्यादा अगर ओपन है तो मैं कैसे समझूंगा कि ज्यादा ओपन मतलब क्या और कम ओपन मतलब क्या, क्योंकि सामने तो पता होना चाहिए ना। तो इसकी वजह से हेलो हेलो ओके, इसकी वजह से अपर्चर को मेजरमेंट करने के लिए उन्होंने एक यूनिट बताया है जिसको कहते हैं एफ स्टॉप। तो अभी हम लोग एफ स्टॉप का जो चार्ट है ना वो चेक करेंगे कि एफ स्टॉप क्या कितने से लेकर कहाँ तक होते हैं। जैसे अपर्चर का अगर मैं चार्ट बताता हूँ आपको, ओके, f1.4 f32, राइट। अभी इसमें ये दो इमेजेस है, मैं आपको एक सिंपल इमेज बताता हूँ, एक थोड़ा टेक्निकल है वो भी बताता हूँ। जैसे अगर हम लोग देखते हैं कि ये इमेज, अभी ये एक इमेज जो है ना सर, ये अगर आप प्रॉपर्ली समझ जाते हो तो आप फोटोग्राफी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हम लोग इसमें इंक्लूड कर लेंगे। इसका मतलब क्या कि एफ स्टॉप जो होता है हमेशा अपर्चर हमेशा एफ स्टॉप में इंडिकेट किया जाता है। तो वो मिनिमम कितना होगा, 1.4 इस इमेज में दिया है, लेकिन इससे भी मिनिमम होता है 1.2। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ काउंट करेंगे कि f 1.4 है, उसके बाद में मेरा नंबर है f2, मतलब मेरा लेंस वहाँ पे थोड़ा कम ओपन होगा। उससे एक्स स्टॉप अगर मैं आगे जाता हूँ तो होता है 2.8, फिर 4, फिर 5.6, फिर f8, फिर f11, f16, f22 और f32। तो ये जो है एफ स्टॉप है, मतलब ये अपर्चर के अलग अलग लेवल से। तो वो लेवल जैसे हम लोग काउंट करेंगे, वो कैसे काउंट करेंगे, अपर्चर के एफ स्टॉप जो नंबर है उस नंबर से। तो यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है, अगर मेरा नंबर ज्यादा है, हाईएस्ट द नंबर मीन्स जो आपका लेंस है वो बहुत कम ओपन हो रहा है, द लोएस्ट द नंबर मीन्स आपका लेंस का जो अपर्चर है वो ज्यादा ओपन हो रहा है। तो वो हमें ध्यान में रखना है। ये थोड़ा जिसको हम लोग कहते हैं ना, ये थोड़ा रिवर्स है, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं
जब देखते हैं, हमें जब अंडरस्टैंड करना है, तो जितना मेरा नंबर कम रहेगा उतना मेरा अपर्चर कम होना चाहिए, लेकिन फोटोग्राफी में ऐसा नहीं होता, ये थोड़ा इनवर्स रिलेशनशिप है। यहाँ पर जितना कम नंबर उतना ज्यादा अपर्चर ओपन होगा, जितना ज्यादा नंबर उतना अपर्चर कम ओपन होगा। I mean, I think in mathematics, जी, it is called inversely proportional. right, inverse proportion. So where, Inverse proportion, this is. right sir, so So, where, yeah, that is okay. In Hmm. fact, if I have to explain aperture, जी, the way I would explain maybe Mhm. is aperture is in a variable opening, Mhm. variable opening depending on the light you want to allow onto the sensor. Exactly. So that is the one thing where we can control your light, okay? And second thing, in every lens, the aperture level gets deferred. That is Change, different. okay. So it means कि जब आप अपर्चर लेवल होता है, तो अपर्चर हमेशा हम लोगों को ध्यान में रखना है कि जितना कम रहेगा उतना मेरा लेंस ओपन हुआ, जितना ज्यादा है उतना कम अपर्चर ओपन होगा। और हमें और एक चीज ध्यान में रखनी है कि अभी इस अपर्चर का मीनिंग क्या होता है। तो जितना मेरा कम अपर्चर है उतना मेरा जो ब्लर बैकग्राउंड है वो ज्यादा मिलेगा, राइट, ब्लर बैकग्राउंड ज्यादा होगा। जितना अपर्चर ओपन होगा ज्यादा, उतना मेरा अपर्चर जितना ओपन है, मतलब मान लीजिए f11 पे है, f16 पे है, तो मुझे जो बैकग्राउंड ब्लर है वो बैकग्राउंड ब्लर दिखेगा नहीं। दैट इज वाई जो फोटोग्राफर्स है वो फोटोग्राफर्स हमेशा ट्राई करते हैं कि मेरे पास जो लेंस है उस लेंस का मिनिमम अपर्चर कितना है। और इसमें और एक चीज ध्यान में रखने की, जो भी लेंस है मिनिमम अपर्चर जिसका ज्यादा है तो लेंस का प्राइस भी ज्यादा होता है। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि 50 mm मेरा लेंस है, 50 mm में 3 हम लोगों ने वेरिएंट देखे, एक था 8,000 का, एक था 23,000 का, एक था 1,30,000 का। अब वो 1,30,000 का क्यों है, इतना प्राइस क्यों उसका है? बिकॉज लेंस तो सेम है, लेकिन लेंस का अपर्चर का मैकेनिज्म है ना, वो मैकेनिज्म बहुत ज्यादा ओपन हो रहा है। तो वो जो लेंस में अगर 1,30,000 वाला परचेस करता हूँ, तो उससे जो मैं क्लिक करूंगा, तो पहली चीज वो लेंस फास्ट होता है, जिसमें अपर्चर कम वो ज्यादा लेंस फास्ट होता है, तो मेरा जो इमेज का क्लिक करने का टाइमिंग है वो भी फास्ट होगा, प्लस मुझे बहुत ज्यादा ब्लर बैकग्राउंड मिलेगा। तो दैट इज व्हाई these lenses are too much costly, which consists the smaller number of aperture. Okay? और अभी जो हम लोग कैमरा के साथ में हमारे पास में जो लेंसेस आते हैं, जैसे किट लेंस हो गया 1855 जो आपके पास है, उसके बाद में 55-250 जो लेंस है, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आपका जो अपर्चर लेवल है वो मैक्सिमम कितना है, मिनिमम कितना है 4 और 5.6, लेकिन इससे नीचे नहीं आप जा सकते। अगर मुझे इससे नीचे जाना है तो बट ऑब्वियसली मुझे दूसरा लेंस अटैच करना पड़ेगा जिसका अपर्चर लेवल इससे कम है, मतलब उसका जो मैकेनिज्म है ये मैकेनिज्म से थोड़ा अलग है, और उसमें मैं ज्यादा लाइट एंटर कर सकता हूँ, ज्यादा ब्लर एरिया मुझे कैप्चर मिलेगा। तो फोटोग्राफी में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अपर्चर एग्जैक्टली क्या, और अपर्चर हम लोग कब यूज करते हैं, कब यूज करना है अपर्चर मोड। जैसे मैंने अभी आपको बताया, आप आपका जो कैमरा है आप अपर्चर मोड पे डालिए, तो इसमें क्या होगा कि इसमें कैमरा बाकी सारे सेटिंग्स अपने आप लेगा, लेकिन अपर्चर का कंट्रोल आपके हाथ में है। मैं इसमें चेंज कर सकता हूँ कि मुझे जितना ब्लर बैकग्राउंड चाहिए, अगर मुझे ब्लर बैकग्राउंड चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मेरा जो अपर्चर है उसको मैं कम कर दूंगा। अगर मुझे बैकग्राउंड ब्लर नहीं चाहिए, मुझे पूरा एंटायर एरिया शार्प चाहिए, जैसे वाइल्ड लाइफ अपना ये लैंडस्केप फोटोग्राफी में होता है, तो लैंडस्केप फोटोग्राफी में मैं क्या करूंगा कि मेरा अपर्चर लेवल है उसको मैं हाईएस्ट रखूंगा। तो उस केस में मेरा जो पूरा बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड दोनों फोकस में रहेंगे, और ब्लर एरिया जो है वो ब्लर इफेक्ट मुझे नहीं मिलेगा। तो वो एक चीज होती है अपर्चर। तो अपर्चर हम लोगों ने आज जो समझा कि अपर्चर मींस एक रिंग है जो हमें कंट्रोल करने के लिए हेल्प करती है कि कितना लाइट मेरे सेंसर के अंदर आएगा, कितना लाइट सेंसर के अंदर नहीं आएगा। सेकेंड चीज, जितना स्मॉलेस्ट द नंबर इट मीन्स मोर लाइट इज कमिंग इनटू योर कैमरा, highest the number means the less light is coming into your camera. Okay. Third thing with what we learn कि अगर मुझे blur background चाहिए तो मैं smaller number of aperture choose करूंगा। तो क्या होगा कि मेरा जो रिजल्ट है वो रिजल्ट
हमें बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा। और सेकेंड, जिसका बैकग्राउंड ब्लर का जो एक फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा। जैसे अगर मैं मान लीजिए डेप्थ ऑफ फिल्म, अभी जैसे यहाँ पर देखिए ये इमेज है, इस इमेज में जब मैं इसको ओपन करता हूँ, ओके, तो अगर मेरा स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ अपर्चर है f1.8 पे मैं अगर शूट कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो कि जो सब्जेक्ट है, ये जो इंसान है, उसका पूरा जो फेस वगैरह है वो शार्प है, लेकिन बैकग्राउंड जो है पूरा ब्लर हो गया है। डन। हाँ, ब्लर हो गया है। वो क्यों हुआ? बिकॉज मेरा जो अपर्चर लेवल है वो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ अपर्चर है, और सेकेंड जो मैं यूज कर रहा हूँ लेंस, उस लेंस का भी अपर्चर स्मॉलेस्ट है, बिकॉज 1.8 मेरे नॉर्मल लेंस में तो अवेलेबल नहीं होता, तो मुझे लेंस जो है वो चेंज करना पड़ेगा। बिकॉज जैसे आपका लेंस है उसमें मिनिमम अपर्चर कितना है 4 से कम तो मैं जा नहीं सकता, तो मुझे लेंस चेंज करना पड़ता है, जिसमें मुझे अपर्चर कम, जो अपर्चर कम लेवल है वो मिलेगा। तो अगर इसका मैं देखने जाऊंगा तो f1.8 पे अगर मैं शूट कर रहा हूँ तो क्या होगा, मेरा पूरा ब्लर बैकग्राउंड हो जाएगा। सेम अगर मैं f18 पे शूट कर रहा हूँ, हाईएस्ट नंबर ऑफ अपर्चर, तो उसमें क्या होगा कि मेरा फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड दोनों शार्प हो जाएंगे। तो हम लोग अपर्चर हाईएस्ट नंबर कब रखते हैं? जब मुझे फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड पूरा शार्प चाहिए। जैसे लैंडस्केप फोटोग्राफी, जैसे आपका हम लोग कहते हैं कि आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी जो होता है, उसमें मुझे पूरा एरिया शार्प चाहिए, वहाँ पे मुझे ब्लर कुछ नहीं करना। एरियल फोटोग्राफी, तो वहाँ पे हम लोग हमेशा अपर्चर लेवल f8 से लेकर f22 18 तक रखते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि किस सिचुएशन में मैं शूट कर रहा हूँ। अगर लाइट मेरे पास ज्यादा है तो मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा, लाइट कम है तो मुझे डिक्रीज करना पड़ेगा। यहाँ तक means if I want to avoid the background, हाँ, and the foreground should be having more sharper image, right, I will choose a smaller aperture. Smaller aperture, exactly. So always choose which is the small. Always you should know that how much is the smallest aperture of your lens. Right. So in every lens it has been mentioned कि अगर मैं जैसे आपको बताता हूँ, कोई भी लेंस में अगर परचेस कर रहा हूँ तो उसके ऊपर एक लिखा होता है कि मिनिमम अपर्चर मतलब क्या। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि लेंस को रीड कैसे करते हैं। अभी आपका ये निकॉन जो लेंस है, इस लेंस को हम लोग एक बेस रखते हैं। तो इसका अगर मैं इमेज से भी चेक करूँ, हाँ, तो अभी आपका जो ये ओके, ये स्मॉल इमेज दिखाई दे रहा है। लेंस को हमेशा रीड करने के दो तरीके होते हैं। एक तो जो बैकग्राउंड में लिखा है, जो मैंने आपको दिखाया कि सिल्वर के ऊपर लिखा गया है वो, और दूसरा जो होता है फ्रंट एलिमेंट। तो फ्रंट एलिमेंट में कुछ डिटेल्स लिखी होती है, तो हमें वो डिटेल्स समझनी है कि डिटेल्स एग्जैक्टली क्या है। जैसे ये लेंस आपका है 55-200, तो आप जब लेंस के अपर साइड पे देखोगे ना, जो फ्रंट एलिमेंट है वहां पर ना ये कुछ डिटेल्स लिखी हुई है कंपनी ने। तो इसका मतलब क्या? तो पहली चीज निकॉन लिखा है, निकॉन, इसको मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ, अभी आप देख पाओगे, राइट। तो जो निकॉन AF-SDX निकॉन मतलब क्या कि निकॉन कैमरा का कंपनी है। निकॉन का जो ऑटो फोकस सिस्टम है, ऑटो फोकस S टाइप है। DX ऑल्सो इज वन टाइप ऑफ लेंस विच निकॉन ऑलवेज मेक, और निकॉन लेंस है। तो ये हमें पता चला कि निकॉन का लेंस है। सेकेंड, यहाँ पर जो 55 और 200 mm लिखा है, इसका मतलब कि मेरा जो लेंस है उसका मिनिमम फोकल लेंथ, मतलब मिनिमम जो डिस्टेंस अगर मैं शूट करता हूँ तो ये मिनिमम अमाउंट कितना रहेगा 55, मैक्सिमम 200। तो मेरा जो लेंस है उसका फोकल लेंथ, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि उसको शूट करने का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा। एक तो 55 mm पे शूट कर सकता हूँ मैं, या फिर 200 mm। 55 से कम नहीं जा सकता, 55 से कम नहीं जा सकता, 200 से ज्यादा नहीं जा सकता। तो यहाँ पर मुझे पता चला कि दो वैल्यू, मेरा जो लेंस है उसका मिनिमम फोकल लेंथ कितना है, मैक्सिमम कितना है। तो ये हम लोग देखेंगे कि 55-200 mm का मेरा लेंस है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है 1.4-5.6 G।
ED VR2। इसका मतलब क्या कि मेरा जो लेंस है, ये जो 1.4 दिखा है ना, इसका मतलब मेरा जो लेंस है उसका मिनिमम अपर्चर लेवल कितना है, 4, 4। आइदर 4 और 5.6। अभी 4 और 5.6 कब होगा, जब मैं 55 mm पे शूट करूंगा तो मुझे लेंस अलाउ करेगा f4 मेरा मिनिमम होगा। 55 mm पे अगर मैं शूट करता हूँ तो f4 जो है अपर्चर वो मेरा मिनिमम होगा। लेकिन अगर मैं सेम मान लीजिए 200 पे शूट कर रहा हूँ तो मुझे कैमरा क्या करेगा, मिनिमम अपर्चर कितना रखने के लिए बोलेगा, 5.6। तो 5.6 से मैं नीचे नहीं जा सकता। ओके, ये हमें पता चला। उसके बाद में G जो लिखा है, G एंड ED, अगेंस्ट देयर आर सम इंडिकेटर्स, जो लेंस के लिए बताया जाता है। उसके बाद में जो VR लिखा है, VR मतलब वाइब्रेशन रिडक्शन। तो आपके लेंस में ऑलरेडी एक मैकेनिज्म है जो आपको वाइब्रेशन रिडक्शन के लिए हेल्प करता है। कल हम लोगों ने देखा था आपके कैमरा की जो बॉडी है उसमें भी VR का एक बटन था, और आपका जो ये लेंस है, लेंस में भी VR का बटन है। तो लेंस में VR का बटन मतलब क्या, कि लेंस में आपका एक इमेज स्टेबलाइजेशन मैकेनिज्म है जो ऑलरेडी आपको बताता है वाइब्रेशन रिडक्शन। तो अगर आपका लेंस हिलता भी है तो अंदर के जो एलिमेंट्स है वो वैसे ही रहेंगे और आपका जो इमेज है वो ब्लर नहीं होगा। तो जो हम लोगों ने आपको बटन दिखाया था ना, मैंने लेंस के पास आपका एक बटन है VR बटन, ऑन और ऑफ। तो आपका जो ये VR जो लेंस है, मतलब इसमें ऑलरेडी मैकेनिज्म है और आप ऑन भी कर सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो। ओके, तो ये VR का पता चला। अभी इसमें जो ये इन्फिनाइट करके एक सिंबल है, उसके अगर लिखा है कि 1.1 और 3.6, इसका मतलब क्या, कि अगर 55 mm में अगर शूट कर रहा हूँ तो मेरा मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए सब्जेक्ट से, 1.1 मीटर या फिर 3.61 फीट। तो हमेशा वो दोनों इंडिकेशन में बताते हैं, मीटर्स और फीट में बताते हैं। तो अगर मैं 55 mm शूट करना चाहता हूँ तो मेरा और सब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम से कम 3.3 फीट होना चाहिए। अगर 3.5 फीट से और ज्यादा कम आ जाता है ना, और ज्यादा क्लोज आता है मेरा सब्जेक्ट, तो मैं फोकस नहीं कर पाऊंगा। तो लेंस हमेशा, कोई भी लेंस होती है ना, तो लेंस का फोकस करने का एक दायरा होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि हमारी इंसानी आंखें, तो जैसे मैं अगर आंखों से कुछ देख रहा हूँ तो मैं देख सकता हूँ, लेकिन अगर मैं एकदम क्लोजर लेके जाऊँ मेरे आंखों से तो हम लोग उसके ऊपर फोकस नहीं कर पाते। मतलब क्या, कि हमारी जो आंखें हैं उनका मिनिमम जो अभी यहाँ तक मैं देखूँ एकदम, तो 2 से 3 सेंटीमीटर मेरे आंखों का फोकल लेंथ है। तो अगर कोई सब्जेक्ट मेरे आंखों से मुझे देखना है तो मेरे आंखों से वो कम से कम 2 या 3 सेंटीमीटर की दूरी पे होना चाहिए। वो एकदम अगर पास में आ जाए तो मैं आंखों से उसको फोकस नहीं कर सकता। सेम होता है लेंस में। तो अगर आपका 55 mm का लेंस है तो यहाँ पर आपका जो मिनिमम डिस्टेंस होगा आपका सब्जेक्ट और आपके बीच में, वो होगा 1.1 मीटर अगर मैं मीटर में काउंट करता हूँ, या फिर 3.6 फीट अगर मैं फीट में काउंट करता हूँ। ठीक है। और उसके बाद एक आपको साइन दिया गया है सर्कल और उसको डैश, विच इज कॉल्ड एज द डायमीटर ऑफ योर लेंस, विच इज द 52 mm। तो 52 mm अभी हमें क्यों पता चला, इसका रीजन क्या। तो मैंने आपको उस दिन बताया था कि आपका लेंस के सामने एक हुड दिया गया है। लेंस के सामने एक प्रोटेक्शन रिंग होता है जो हम लोगों ने देखा था, लेंस का हुड। तो हर एक लेंस का हुड अलग अलग होता है, बिकॉज हर एक लेंस का जो साइज है, जो डायमीटर है, वो डायमीटर चेंज होते रहता है। तो इस लेंस का अगर मुझे लेंस हुड परचेस करना है तो वो मुझे भी 55 mm का ही परचेस करना पड़ेगा, 52 mm का, तो ही वो मेरे लेंस को प्रॉपरली फिट हो पाएगा। अगर मैं इससे ज्यादा बड़ा डायमीटर वाला लेंस हुड परचेस करता हूँ तो मेरे लेंस को वो फिट नहीं होगा। तो ये 52 mm आपको कब हेल्प करेगा, जब आपका जो लेंस है उस पर अगर आप लेंस हुड लगा रहे हो, या फिर फिल्टर मतलब एक कांच का रिंग होता है जो हम लोग अपने लेंस के सामने अटैच करते हैं। उसमें अल्ट्रा वायलेट फिल्टर होता है, पोलराइज फिल्टर होता है और न्यूट्रल डेंसिटी फिल्टर। वो हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में स्टडी करेंगे ही कि फिल्टर क्या होता है, वो कब यूज करना है। एज ऑफ नाउ हमें सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि आपका लेंस के ऊपर जो एक इनफाइनाइट कॉलम करके नंबर लिखा होता है, इट मीन्स इट इज द डायमीटर ऑफ योर लेंस। तो अगर आप फिल्टर परचेस करना चाहते हो या फिर लेंस हुड परचेस करना चाहते हो आपके लेंस के लिए, तो आपको वो उसी नंबर से मैच किया हुआ फिल्टर लेना पड़ेगा। 52 mm का ही फिल्टर लेना पड़ेगा। अगर मैं 52 mm का ज्यादा नंबर का अगर फिल्टर परचेस करता हूँ तो मेरे वो लेंस को अटैच नहीं हो पाएगा ऐसे। तो आप वो आप देखोगे, और लेंस के हमेशा दोनों साइड थ्रेड होते हैं।
वो एक हमेशा आप ऑब्जर्व करना। अभी आपका भी लेंस देखोगे आपके हाथ में, तो आपका लेंस का जो इनर साइड है ना उसमें भी थ्रेड से, और आउटर रिंग जो उसको भी थ्रेड है। तो जो इनर साइड का थ्रेड क्यों होता है, क्योंकि वो आपका फिल्टर वहां पे स्क्रोल होगा, और आउटर साइज जो है वो आपका लेंस शूट के लिए। देखिए आपका जो लेंस है ना, लेंस के इनर साइड भी थ्रेड होंगे और आउटर साइड भी थ्रेड होंगे। तो कई बार जो लेंस है वो लेंस का हुड अगर मैं दिखता हूँ तो इनर साइड से फिट होता है, कई बार आउटर साइड से। तो हमेशा वो आपको जो थ्रेड से वो दोनों बाजू दिए जाते हैं। ओके, तो अगर अभी हम लोग देखते हैं कि आपका जो आज का टॉपिक था वहां पर हम लोगों ने सीखा पहली चीज कि आपका लेंस का अपर्चर मतलब क्या, सेकंड अपर्चर का यूज क्या है, कि अपर्चर क्या कंट्रोल करता है, और थर्ड थिंग कि अपर्चर को मुझे कब ज्यादा रखना है कब कम रखना है। ये आपको समझा अपर्चर मतलब क्या? यस यस। तो अभी आज आपका जो एक्सरसाइज है, मतलब आज आपको होमवर्क क्या रहेगा कि आपको अपर्चर आपको क्या करना है, जैसे मैंने पहले दिन आपको बोला कि आप आपका कैमरा से जो भी शूट करोगे वो हर एक मोड पे आप कैमरा स्विच कीजिए और एक एक इमेज लीजिए। वो आपका पहला होमवर्क। सेकंड, आज का आपका होमवर्क है कि आप कैमरा को अपर्चर मोड पे डालना है। ओके, अभी आपने जैसे अपर्चर मोड पे कैमरा डाला था, और उसके बाद एक सेम सब्जेक्ट आप क्लिक कीजिए हर एक नंबर पे। जैसे आपका मिनिमम 4 है तो 4 पे एक इमेज क्लिक कीजिए, उसके बाद 5.6 पे एक इमेज क्लिक कीजिए, फिर आपका F8 पे क्लिक कीजिए, F11, F14, 16, 32, उसके बाद 22 और 32। तो आपके 7-8 इमेज हो जाएंगे। तो कल जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग उसमें देखेंगे कि हर एक इमेज जब आप क्लिक कर रहे हो अपर्चर एक एक नंबर बढ़ा के, तो एग्जैक्टली जो इमेज उसमें क्या वेरिएशन आता है, तो वो वेरिएशन से हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आज जो हम लोगों ने स्टडी किया उसमें आपको कोई डाउट वगैरह है सर? I don't have a doubt. I can understand this. ओके ओके, कोई बात नहीं, मैं आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कर दूंगा, एंड साइमल्टेनियसली आप आज स्टडी भी कीजिए कि अपर्चर थोड़ा पर आप ना टेस्ट करोगे ना लेंस के ऊपर, थोड़ा लेंस को एक बार दो बार जब यूज करोगे ना अपर्चर मोड पे डाल के, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि अपर्चर जितना आपका ज्यादा है तो ऑटोमेटिक आपका इमेज डार्क होते जाएगा। जितना आपका अपर्चर now how do you vary the aperture? Using that mode dial button in which is in top of your camera, sorry back side of your camera। वो जो मोड डायल मैंने आपको बताया था ना, there is a one wheel आपके Nikon D90 में, D90 कैमरा, ये वाला, हाँ ये आपको मैं बताता हूँ। ओके, तो ये सामने वाला जो एक आप डायल देख पा रहे हो ना, इससे भी आप कर सकते हो, और जो बैक साइड आपका डायल है ना उससे भी आप कर सकते हो। तो जब आप उसको डायल को घुमाओगे स्क्रॉल करोगे तो आपका अपर्चर जो है वो एक एक स्टॉप बढ़ते जाएगा। तो दोनों तरीके से हम लोग कर सकते हैं, एक तो आपका फ्रंट डायल जो है वो, या फिर आपका जो बैक साइड डायल दिया गया है ना स्क्रोलिंग बटन बैक साइड आपके कैमरा में, आप वेरी कर सकते हो इससे। हाँ, जो बैक साइड डायल दिया गया है ना उससे भी आप वेरी कर सकते हो। तो आप ट्राई कीजिएगा, फ्रंट साइड का जो डायल है उससे आप करोगे तो भी कोई इश्यू नहीं, तो ऑटोमेटिकली आपका अपर्चर वो वेरी होते जाएगा, और आप अलग अलग अपर्चर लेवल पे इमेजेस आप कैप्चर कर पाओगे। ओके, वो अमल अलग अलग अपर्चर के हम लोग कल इमेजेस जो वो चेक करेंगे। एंड आज का जो आपका है ये 2 होमवर्क हो गए, तो अभी आपके पास 2 होमवर्क है, पहले वाला जो लेक्चर हुआ उसका और आज का जो है वो। Okay. So it is changing, right? It is getting changed. Whenever you will scroll that button, so it will jump on the next stop. That is for F4, then 5.6, then again F8, then F11, then F14, then F16, then after F18, then F22 and F32. तो अलग अलग ये फैक्टर्स है अपर्चर के। Okay. तो आज का जो लेक्चर हम लोग सर यहाँ पर स्टॉप करते हैं। आज हम लोगों ने सीखा, उसमें भी आप देखिए प्रैक्टिस कीजिए, कुछ अगर डाउट लगता है तो वी विल दैट डिस्कस टुमारो, कि टुमारो आप जो आज प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस में आपको क्या क्या प्रॉब्लम आता है। ठीक है, मैं करूँगा जी। तो आज अभी हम लोग सीखा, इसमें अभी तो कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि और कुछ चीजें जो अंडरस्टैंड करने के लिए आपको प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम लोग उसको फिर से एक बार डिस्कस करें।
Okay. Now, once I try this, I don't Right. see any problem. Mhm. But still, usage is the important. Theoretically, I can learn. Right, but the most important is your practice. So whenever you, What is this button? which one, sir? Just show me the in camera. From the eye view, on top of it, circular button is there. Yes, that I told you when you are using eye finder. So if you have spectacles, so what happens whenever you Only use for that. spectacles, right, sir? Okay. So when you will scroll that, so automatically you will be able to see clearly from your viewfinder. So according to your eyesight, because according to your eyesight, you can switch that. There is a plus and minus button is plus and minus sign is there. So if you are getting blur image in your viewfinder, just try to scroll it towards the minus direction. So say suppose when you will scroll that towards the minus direction, automatically that inner side things you will be able to see clearly. जो आपको viewfinder से clearly show करेगा. When the aperture is changing, there is another number which is also changing. 2.5, 3. What is that? Okay, that is your shutter speed because I Shutter speed. Right. So why I told you to keep the camera on the aperture priority mode. So again you will come to know when you are switching your aperture, camera will automatically switch the settings, which is a shutter speed and the ISO. Okay. लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना कि अभी जब आप अपर्चर लेवल पे अपर्चर मोड पे आप शूट करोगे ना, तो आपका कैमरा आप स्टेबल रखिएगा, क्योंकि आपका जो शटर स्पीड है वो कैमरा बहुत कम लेके जाएगा शटर स्पीड. तो उस केस में अगर आप हैंडहेल्ड शूट कर रहे हो तो आपका इमेज ब्लर हो जाएगा. तो ट्राई टू कीप द कैमरा ऑन द स्टेबल सरफेस एंड देन एवरी टाइम स्विच द अपर्चर लेवल, jump the aperture level using one point and try to click the image. So tomorrow, how many images you have clicked? Say suppose 5 or 10 images. So what is the difference in that images? Why entire variation has been coming on? That we will study. Okay, sir. Okay. Sure, sir. For today, end of the day, we will provide you the recording also. Okay. Okay. Sure, sir. I'll do that. Take care, sir. Bye bye. Bye. Bye, sir.